Hello guys, welcome to my channel Smart EduDips Learning Smart with Dipanata. So today we are going on an adventurous journey down the mighty Mississippi River with one of the most famous American novels, The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain. So in this novel, we are going to discuss a couple of topics which will help you in your exams, in competitive exams, or in general people who want to know about a novel but do not have time to read the novel completely. This particular video will help you in that. Okay. So, topics we're going to discuss is introduction to the novel, important characters, setting, style, and language, summary of the entire novel in short, so that you know the story, themes, and symbolism. Okay, so these things and symbolism, style, and language setting, these are very important questions that comes in your masters or in any kind of exams. We have to write essay type questions. So, without any further ado, let's get started. Introduction to the novel. This novel was first published in 1884 and is often called the Great American Novel. It's written by Mark Twain, whose real name was Samuel Longhorn Clemens. Okay, so here is the picture of Mark Twain. He is the person who has written this particular novel, and it was published in 1884, and it is often called the Great American Novel. The story is told by a young boy, Huckleberry Finn, who had earlier appeared in Adventures of Tom Sawyer also. While Tom Sawyer was fun and very playful, Huckleberry Finn is deeper. It deals with freedom, morality, and the issue of slavery in 19th century America. So दोनों जो कैरेक्टर्स हैं टॉम सॉयर का और हकलबेरी फिन का दोनों थोड़े थोड़े ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं. टॉम सॉयर बहुत ज़्यादा फनी थे, प्लेफुल थे, बट हकलबेरी फिन वाज is a character who is more deeper, who deals with the issues of the society, slavery, etc. Okay, now let's see the important characters. First here is Huckleberry Finn, of course, the young narrator. He's intelligent, he's practical, and morally very independent also. Jim. Jim is another character who is very kind. He's wise, enslaved man who becomes Huck's companion and moral guide. तो हक का पूरे स्टोरी में आप देखेंगे कि उसका फ्रेंड रहता है और मॉरली भी उसको गाइड करता है. पैप फिन, दैट्स हक्स अब्यूसिव फादर. बहुत ज़्यादा अब्यूसिव एंड टॉक्सिक इंसान थे जो हकलबेरी फिन के पापा थे. उनका नाम था पैप फिन. ओके, रिप्रेजेंटिंग इग्नोरेंस एंड प्रेजुडिस. Tom Sawyer, Huck's imaginative friend who represents romanticized ideas of adventure. Okay, now let's see the setting of the novel. Time was pre-Civil War America. Place along the Mississippi River. So the entire novel is almost set along the Mississippi River, symbolizing both adventure and freedom. Okay. Now this Mississippi River also has a very much bigger importance. In fact, in this particular novel, there's a question also that comes that what is the significance or what is the symbolism of the Mississippi River in the poem The Huckleberry Finn. Later on in some other video, I'm going to discuss this answer because it's a very important question. Okay, now style and language. Twain uses regional dialects and realistic speech to give authenticity to the setting. मतलब वो regional language और regional कुछ ऐसे dialogues use करते हैं ताकि हम लोगों को ये मतलब वो authenticity मिले ना readers को कि वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ का story है. The novel is known for its humor, satire and sharp criticism of social norms. तो उस time में जो humor होता था, satire भी है, और जो उस time में जो criticism मतलब जो societal norms होते थे उसको criticize करते हुए इस novel लिखा गया है. Now summary. At the beginning, Huck is living with the widow Douglas. Now, the summary I'm going to, before telling you the entire novel, I'm going to tell you that the summary is not the entire novel. If you want to know the entire novel, you need to go and read it. But in short, I'll tell you, I will explain you the entire novel. Okay. So, who's trying to civilize him, making him polite, religious, and proper? बट हक लव्स इज फ्रीडम एंड हेट्स फॉलोइंग स्ट्रिक्ट रूल्स. तो हक जो थे वो उसको बहुत फ्रीडम पसंद था, उसको ये प्रॉपरली रहना सिविलाइज वे में मैनर्स के साथ वो उसको पसंद नहीं था. ओके, सो हिज फादर पैप फिन इज एन वेरी अब्यूसिव ड्रंकार्ड हु वांट्स हक्स मनी. सो पैप फिन जो थे हकलबेरी फिन के पापा, वो बहुत ही ज़्यादा पीते थे, पियक्कर थे, और वो हमेशा पैसा चाहते थे हक से कि भाई पैसा दो. सो वन डे हक फेक्स हिज ओन डेथ एंड एस्केप्स. वो कहता है कि मैं मतलब हक फेक करता है कि वो मर चुका है और वहाँ से भाग जाता है कैसे करके. Yes, you heard that right. He escapes to an island on the Mississippi River. तो यहाँ से मेनली मिसिसिपी रिवर का कहानी शुरू होता है. वो कहाँ जाके पहुँचता है? मिसिसिपी रिवर के पास एक आइलैंड में. Meeting Jim and the journey. So on the island, Huck meets Jim, a kind-hearted enslaved man who has run away from
मिस वॉटसन हिज ओनर। सो अब जिम जो है वो बहुत काइंड हार्टेड होता है और वो स्लेव होता है, इंस्लेव्ड पर्सन, मतलब किसी के अंडर वो काम करता है, स्लेवरी करता है, और मिस वॉटसन उसका ओनर होता है। टुगेदर दे बिल्ड अ राफ्ट एंड बिगिन देयर एडवेंचरस जर्नी डाउन द रिवर। तो दोनों मिलके, हक और जिम मिलके एक राफ्ट बनाते हैं, राफ्ट, रिवर राफ्ट, ऐसे नाव जैसा थोड़ा छोटा सा जो होता है, प्रॉपर नाव नहीं होता, और वो लोग मिसिसिपी रिवर को, मतलब रिवर में एडवेंचरस जर्नी अपना स्टार्ट करते हैं। द रिवर बिकम्स अ सिंबल ऑफ फ्रीडम बोथ फॉर हक who wants to escape civilization and for Jim also who wants to escape the slavery. ओके, सो मिसिसिपी रिवर जो होता है उनके लिए एक फ्रीडम का सिंबल बन जाता है। वो लोग जो पूरे जर्नी में जाते हैं, जो मस्ती करते हैं, जो खुद को एकदम फ्री फील करते हैं। ओके, जिम के लिए वो स्लेवरी से स्केप था और हक के लिए सिविलाइजेशन से। ओके, during their journey, they faced storms, narrow escapes, and met all kinds of people, from kind farmers to dangerous criminals like the Duke and the King. Through these encounters, Huck begins to question what society teaches him about right and wrong. So, जब वो ये जर्नी कर रहा होता है, वो बहुत लोगों से मिलता है, स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी होते हैं, बहुत अच्छे लोगों से भी मिलता है, बहुत क्रिमिनल से भी मिलता है, बहुत कुछ होता है उसके लाइफ में, ड्यूक से मिलता है, किंग से मिलता है, पर वो हर एक एनकाउंटर में कुछ सीखता है और अपने आप से सवाल पूछता है कि सोसाइटी उसे क्या सिखाना चाह रही है। ये सब जो अलग अलग इंसानों से, अलग अलग सिचुएशन से वो गुजर रहा है, what does God want to teach him, or the society wants to teach him in general, which is right, which is wrong. Okay, so this is what the novel is going like. Now Huck's moral conflict. Now तो novel तो बहुत लंबा है, पर यहाँ पे एक one of the important points है कि जो हक का moral conflict होता है, जो ये दुविधा में पड़ता है, कि दोहराए में पड़ता है, कि जो वो कर रहा था, जिम को भगाने में जो वो उसका मदद कर रहा था, क्या वो सही कर रहा था। ओके, सो वो क्या करता है, ये सोच जैसे उसके दिमाग में आता है, वो जिम के ओनर को एक लेटर लिखता है कि वो कहाँ है, बट ही टेयर्स इट अप एंड सेज आई विल गो टू हेल देन। कहते हैं मैं अगर ये कर दिया, इतना दूर आने के बाद उसके साथ मेरे दोस्त बना, मुझ पर भरोसा करता है, अगर मैंने ये कर दिया तो मैं तो हेल में जाऊँगा, जहन्नुम में जाऊँगा। तो वो क्या करता है, एंड में वो फाड़ देता है वो चिट्ठी जो उसने लिखा था जिम के ओनर को। That's a turning point. Huck chooses his own conscience over society's rules. It shows his growth from a confused boy to someone who makes moral choices based on humanity, not blind obedience. तो ये क्या हमें शो करता है हक के बारे में, कि भाई ये अब अपना थॉट से सोच रहा है, सोसाइटी क्या सोचेगी इस चीज़ से नहीं सोच रहा है। ठीक है, उसके लिए खुद एक ग्रोथ है कि वो खुद का डिसीजन खुद ले पा रहा है, वो अभी कन्फ्यूज लड़का नहीं रहा, ही इज़ नॉट कन्फ्यूज एनीमोर, ही इज़ टेकिंग हिज ओन डिसीजंस। ओके, now, at the end, we can see that towards the end, Jim is captured again, and Huck's friend Tom Sawyer reappears. तो हक का जो फ्रेंड है टॉम सॉयर, वो वापस आ जाता है और जिम इज कैप्चर्ड अगेन. टॉम loves adventure and creates an overcomplicated plan to free Jim just for fun. अब हक एंड टॉम दोनों ऑपोजिट काइंड ऑफ कैरेक्टर, नॉट ऑपोजिट बट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, हमने पढ़ा था, बिकॉज टॉम इज़ मोर प्लेफुल। तो एक प्लान बनाता है कि भाई एडवेंचरसली, और बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड प्लान बनाता है कि जिम को कैसे वो जैसे वो पकड़ा गया है, तो कहाँ से कैसे उससे बाहर निकालेगा। बट बाद में ये पता चलता है दैट इट इज़ रिवील दैट जिम ओनर मिसेस वॉटसन और मिस वॉटसन हैड फ्रेड हिम ऑलरेडी, उसको ऑलरेडी रिहा कर दिया था, आज़ाद कर दिया था बेसिकली, बिफोर शी डाइड. इन द एंड हक डिसाइड्स टू हेड वेस्ट, सेइंग ही वांट्स टू लाइट आउट फॉर द टेरिटरी away from civilization. It shows his desire to stay free and true to himself. So in the end क्या होता है, हक चला जाता है वेस्ट की तरफ, वो कहता है कि मुझे फ्रीली वहाँ पे रहना है, एंड ये उसका दिखाता है कि वो कितना थ्रू है खुद के ऊपर, खुद के डिसीजन ले सकता है, एक स्मार्ट बॉय हो गया, कंफ्यूज नहीं रहा, और वो खुद सब कुछ अभी फ्रीली कर सकता है. दैट्स इट. अब ये पूरा नॉवल शॉर्ट में तो बोला, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स था, इट्स अ बिग नॉवल, यू शुड गो एंड गिव इट अ रीडिंग, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस नॉवल. सो नाउ लेट्स गो टू थीम्स एंड symbolism. Freedom versus civilization. Huck and Jim's raft symbolizes freedom, while the towns they pass represent society's restrictions. ओके, सो फर्स्ट थीम जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो है फ्रीडम वर्सेस सिविलाइजेशन. की फ्रीडम, एक तरफ फ्रीडम है, एक तरफ आज़ादी है, और एक तरफ सिविलाइज सोसाइटी के नॉर्म्स है, सोसाइटी में रहना है, कैसे रहना है, जो रेस्ट्रिक्शन सोसाइटी ने इम्पोज किए वो सब भी मानना है. तो ये दोनों तरफ का जो कॉन्ट्रास्ट है वो हमें दिखता है. नेक्स्ट इज रेसिज्म एंड स्लेवरी. Twain exposes the hypocrisy of society that calls itself Christian but accepts slavery. So जो Christian norms होते हैं उसके हिसाब से आप slavery नहीं कर सकते, उनके जो thought होता है, अलग अलग टाइप के ग्रुप्स ऑफ Christian होते हैं, बट वहाँ पे ट्वेन इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है कि कैसे ये लोग हिपोक्रेट है, कि ये लोग क्रिश्चियन हैं और ये लोग स्लेवरी को भी प्रमोट कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज moral growth. Huck's journey is both physical and emotional. It's about learning to follow his heart. तो हमने तो ये देखा ही है, जब जितना भी हमने एक समरी देखा, कि हक जो है एक फिजिकली भी और इमोशनली भी ग्रो करता है. कन्फ्यूज बॉय से वो बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट बन जाता है और अपने डिसीजंस लेने लगता है, अपने हार्ट को फॉलो करता है. तो दैट्स हिज मॉरल ग्रोथ. फ्रेंडशिप.
So friendship is the next theme. So the bond between Huck and Jim breaks racial barriers and highlights kindness and loyalty. तो हमने पूरे नोवेल में देखा कि हक और जिम का जो अंडरस्टैंडिंग था, जो फ्रेंडशिप था, दोनों को दोनों जो सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें एक प्योर बॉन्ड, प्योर फ्रेंडशिप भी दर्शाता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द नोवेल. बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द नोवेल इज़ द मिसिसिपी रिवर. उसका जो इंपॉर्टेंस है वो हम एक दूसरे वीडियो में पर्टिकुलरली वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, द सिम्बॉलिज्म ऑफ द मिसिसिपी रिवर. So to conclude, The Adventures of Huckleberry Finn isn't just a story about boy and a river. It's a story about growing up, about choosing right over wrong, and about what it truly means to be free. So हम लोगों ने देखा एंटायर नोवेल में हक का जो एक कैरेक्टर, उसका जो ग्रोथ था, उसने जो राइट और गलत और सही को चुनना सीखा, तो इन सब चीज़ें, उसका फ्रीडम, ये सब चीज़ के बारे में बेसिकली ये नोवेल था, फ्रेंडशिप के बारे में, एक्सेट्रा. ओके, नाउ द मिसिसिपी रिवर ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर. बट मैंने वो आंसर जो है, पर्टिकुलर सिम्बॉलिज्म ऑफ मिसिसिपी रिवर इन द पर्टिकुलर नोवेल हकलबेरी फिन, ये मैंने डिस्कस यहाँ पे नहीं किया, वरना वो लंबा हो जाता. उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं पूरा आंसर भी लिख के वहाँ पे दूंगी और मैं एक्सप्लेन भी करूँगी. सो यू कैन सी दैट बिकॉज दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट्स लाइकली टू कम इन एग्जाम्स. So stay tuned for that. And if you've liked this video and found it informative, please do give it a like, share it, and subscribe my channel, Learning Smart with Dipanita. Thank you.